Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 4th वीक ऑफ जनवरी मंथ के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। नोट्स ज़रूर बना के चलना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, रिवीजन में बहुत काम आएंगे आपके। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया अभी प्रण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ श्री राम लल्ला आइडल इन द न्यूली बिल्ट श्री राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या यूपी। सबसे पहले तो लोकेशन याद रखेंगे, ये नया श्री राम जी का जन्मभूमि मंदिर कहाँ पर रहेगा? अयोध्या में, यूपी में। फिर अभी यहाँ पर एक 4.25 फीट या फिर हम बोलें 51 इंच का एक रामलला आइडल प्लेस किया गया। पूछा जा रहा है कि जो रामलला इनका आइडल है ये किसके द्वारा स्कल्प्ट किया गया, बनाया गया, तराशा गया? तो अरुण योगीराज के द्वारा इसको यहाँ पे तराशा गया है। फिर ये जो मंदिर है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? L&T के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर 2024 अभी जनवरी में हुई। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे एक्सरसाइज का नाम क्या है? खंजर। 2024 में हुई, जनवरी के महीने में। 11वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का। पूछा जा रहा है लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की, तो कहाँ पर हुई थी ये लोकेशन? हिमाचल प्रदेश में हमें ये लोकेशन देखने को, एक्सरसाइज देखने को मिली। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? बकलो में। ठीक है, 22 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक ये एक्सरसाइज हुई। राइट ऑप्शन आ जाता है आपका ऑप्शन 4, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नेम द स्कीम दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम मतलब सोलर एनर्जी से बिजली जनरेट करने की यहाँ पे बात की गई। घर की छतों पे, रूफ्स पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। किस स्कीम के अंडर यहाँ पे ये लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंडर इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड इस स्कीम के अंडर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को यहाँ पे कवर करने की बात की गई, एंड टारगेट रहेगा 40 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी यहाँ पे जनरेट करने की बात की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल सर्विसेज हैव नॉट बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एट इंडियाज फर्स्ट IFSC, जो कि जिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर गुजरात में। तो ये जिफ्ट सिटी कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। और यहाँ पे पहला इंडिया का IFSC है। इसमें से कौन सी सर्विस ये प्रोवाइड नहीं करता? तो डाटा स्टोरेज की सर्विस ये प्रोवाइड नहीं करता, बाकी सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं डाटा सेंटर्स की बात करूं, डाटा स्टोरेज के लिए एक हब सेटअप किया जा रहा है, वो है नोएडा, यूपी में। अगर मैं बात करूं पहला AI सिटी इंडिया का कौन सा रहेगा? वो है लखनऊ। लखनऊ भी कहाँ पर है? यूपी में। नोएडा कहाँ पर है? यूपी में।
ठीक है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है अभी, कहाँ पर है? यूपी में। अभी अयोध्या का हमने क्वेश्चन देखा था कि रामलला का मंदिर कहाँ बना? यूपी में। फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही है अभी, यूपी में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। इवन ग्रेनो, जिसको हम ग्रेटर नोएडा कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही डेवलपमेंट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। फ्यूचरिस्टिक सिटी यहाँ पे बनाने की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस जनरेटिव एआई LLM कॉल्ड भारत जीपीटी, जो कि है एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अगर आपको याद हो, भारत जीपीटी जियो ने IIT मुंबई के साथ टाइप किया था, IIT बॉम्बे के साथ, ताकि भारत जीपीटी को डेवलप किया जा सके। तो सिमिलरली याद रखेंगे अभी, नेम द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला जनरेटिव एआई LLM कॉल्ड भारत जीपीटी। ये CoreOver.ai के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, which of the following Indian badminton players have recently won silver medal in the men's double of Yonex Sunrise India Open 2024, जो न्यू दिल्ली में हुआ? तो क्या नाम है उन डबल्स का? वो है सात्विक साईराज रानीक रेड्डी एंड चिराग सेठी। इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। हम कह सकते हैं ये रनर अप थे, इनकी सेकंड पोजीशन आई यहाँ पर। और ये जो यूनेक्स सनराइज इंडिया था, लोकेशन क्या रहेगा इसका? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्ट द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशिया कप 2024 इन जनवरी 2024? तो याद रखेंगे, कतर में हमने अभी AFC एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन एशियन कप 2024 का होस्ट किया जनवरी में। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर, सिल्वर की फाइन्स पर एंड कॉइन्स पर ऑफ प्रीशियस मेटल्स इंक्रीज कर दिया है टू 15%, जो कि पहले थी 10%। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, कितनी हो गई अब? 15%। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू एस्टैब्लिश अ होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस? तो अभी रिसेंटली ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कि अपनी खुद की इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, जो कि ग्रीन एनर्जी एंड गैस का बिजनेस संभालेगी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस सिटी में 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024? तो किस सिटी में हुआ? ये फरीदाबाद में हुआ। फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में, राइट। 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ कहाँ पर? फरीदाबाद, हरियाणा में, करेक्ट। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली साइन किया एक टर्मशीट एग्रीमेंट विद IHI कॉर्पोरेशन टू सप्लाई 0.4 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ ग्रीन अमोनिया फ्रॉम ओडिशा टू जापान? तो इंडिया से हम जापान 0.4 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया को सप्लाई करेंगे। इसके लिए किस कंपनी ने अभी एक IHI कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया? वो है ACMA ग्रुप ने टाई अप किया IHI कॉर्पोरेशन के साथ फॉर दिस सप्लाई ऑफ 0.4 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन अमोनिया टू जापान। इससे क्या होगा? 54 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते थे, उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगी, वो हम एमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड एड्रेस किया 5वां इंटरनेशनल एंड 44th नेशनल क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस एट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में। तो ये 5वां कॉन्फ्रेंस था इंटरनेशनल लेवल पे और 44th कॉन्फ्रेंस था नेशनल लेवल पे ऑफ क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस, और ये कहाँ पर हुआ? NFSC में, जो कि गांधीनगर, गुजरात में है। नेक्स्ट, नेम द इंडियन इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज दैट वाज कमेंस्ड एट अंशास इजिप्ट इन जनवरी 2024। तो एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? साइक्लोन 2 क्यों कह रहे हैं? ये सेकेंड एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, करेक्ट। एंड 2024 में हुआ, 22 जनवरी 2024 को ये स्टार्ट हुआ था, 1 फरवरी 2024 तक ये कंटिन्यू रहेगा, करेक्ट। एक्सरसाइज साइक्लोन 2
इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। मूविंग ऑन, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया 2 न्यू प्रोडक्ट्स, सरल समाधान सुप्रीम एंड स्मार्ट समाधान सुप्रीम। सो ये जो 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हैव रिसेंटली वन बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बेस्ट वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 22-23 रिस्पेक्टिवली। सो शुभनम गिल एंड दीप्ति शर्मा मेंस कैटेगरी में एंड वीमेंस कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे आईसीसी बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बेस्ट वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर का खिताब जीत लिया 2022-23 के लिए। एंड ये बीसीसीआई के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे, आईसीसी नहीं, बीसीसी के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे। एंड जो बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर है ना, इसको एक और अवार्ड से जानते हैं, पॉली उमरीगर अवार्ड। पॉली उमरीगर अवार्ड। हाउ मेनी मेडल्स हैव वन बाय इंडिया इन द एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 हेल्ड एट कुवैत इन जनवरी 2024। तो अभी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में इंडिया ने 8 मेडल जीते, चाइना ने 13 मेडल जीते। चाइना की पोजीशन रही फर्स्ट, इंडिया की पोजीशन रही 5th। राइट, मार्क करके चलेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, और एक चीज और, जो इसका लोकेशन थी कहां पर हुआ था, कुवैत में हुआ था एशियन शॉटगन चैंपियनशिप। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 24 जनवरी 2024। सो थीम क्या रहेगी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ये आपकी थीम रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की, जो कि 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट टाइम 2019 में। नेक्स्ट, एज ऑफ जनवरी एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रिडिक्टेड कि जो इंडियन के बॉन्ड्स हैं दे विल अट्रैक्ट ऑलमोस्ट $100 बिलियन ऑफ फॉरेन इनफ्लोज ड्यू टू ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन। इनको जब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे तो एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने प्रेडिक्ट किया कि इंडियन बॉन्ड्स अट्रैक्ट करेंगे ऑलमोस्ट $100 बिलियन का फॉरेन इनफ्लोज। नेक्स्ट, which of the following countries along with India have recently conducted the exercise Desert Night, जो कि एक ट्राइलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज रहेगी। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। ऑप्शन 5 अलॉन्ग विद इंडिया। याद रखेंगे एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये, ठीक है। डेजर्ट नाइट इंडिया की तरफ से फिर यहाँ पे सुकोई 30, मार्क 1, मिग 29 एंड जैगवार, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स इन इंडिया। तो ये UNFAO, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड नीति आयोग के द्वारा मिलके अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई इन एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स इन इंडिया। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4, 1 and 2। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1070 करोड़ रुपए का विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को डिलीवर करने के लिए किसको, इंडियन कोस्ट गार्ड को। अभी किस कंपनी ने टाई अप किया है, 1070 करोड़ रुपए का कंपनी का नाम पूछा गया है, तो वह है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1070 करोड़ रुपए का, करेक्ट, और 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स यहाँ पे डिलीवर करने की बात की गई। एंड इनको कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्वैग पेंशन प्लान विद कस्टमाइजेबल एन्युटी ऑप्शंस। तो ये स्वैग पेंशन प्लान लॉन्च किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा।
Next, according to the report titled Finances of Panchayati Raj Institutions released by RBI in January, the own revenues of panchayats account for only -% of their total revenue. मतलब जो पंचायत अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं दैट इज जस्ट 1.1% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू. करेक्ट. ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा. नेक्स्ट, इन जनवरी सेबी ने रिलीज किया एक फ्रेमवर्क फॉर ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स ऑफ टू एम्प्लॉयज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म सच एज BSE एंड NSE. एज पर द फ्रेमवर्क जो मैक्सिमम बिड अमाउंट रहेगी शेल बी हाउ मच पर. सो जो मैक्सिमम बिड अमाउंट रहेगी 5 लाख रुपए रहेगी एंड जो अमाउंट अलोकेट किया जाएगा ऑफ द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर जो अलोकेट किए जाएंगे ईच एम्प्लॉय को विल बी अप टू 2 लाख रुपीज. करेक्ट. एंड ये जो ऑफर फॉर सेल है एम्प्लॉयज का विल बी ऑन T+1 डे एंड अलॉन्ग विद द रिटेल कैटेगरी अंडर अ न्यू कैटेगरी कॉल एम्प्लॉय. ठीक. फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अमाउंट क्या रहेगा? 5 लाख. मैक्सिमम बिड अमाउंट शेल बी 5 लाख. नेक्स्ट, who has been recently awarded with the भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पोस्टह्यूमसली. मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और वो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड सोशल वर्कर कर्पूरी ठाकुर जी. ठीक है. एंड याद रखेंगे 49 रेसिपिटेंट बने भारत रत्न के जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का एंड 15th रेसिपिटेंट जिनको पोस्टह्यूमसली मतलब इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे सम्मानित किया गया. अभी आडवाणी जी को भी याद रखेंगे, अनाउंस किया गया कि इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा. नेक्स्ट, CCI हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अराउंड 38% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश कंपनी बाय JSW वेंचर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड. तो JSW वेंचर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ये 38% एक्वायर करेंगे MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में. राइट. MG मोटर्स आपको पता है MG मोटर्स की कार्स आती हैं जैसे हेक्टर हो गई. ठीक है. इसमें 38% एक्वायर करेंगे. नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया. तो 25 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वोटर्स डे. ठीक है. और इसकी एक थीम भी याद रखेंगे. इस बार 2023 में और 24 में सेम थीम थी इसकी, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर. आई रिपीट, थीम क्या रहेगी? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर. और ये 14th एडिशन रहेगा नेशनल वोटर्स डे का. नेक्स्ट, नेम द इंडियन वुशु एथलीट हु हैज रिसेंटली वन द वुशु सांदा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए. तो कौन रहेंगी? वो है रोशिबिना देवी नौरैम. राइट. पूछा जा सकता है कि रोशिबिना देवी नौरैम ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये वुशु से बिलोंग करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इन जनवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 19,100 करोड़ रुपीज इन डैश डिस्ट्रिक्ट. तो ये बुलंदशहर यूपी में यहाँ पे 19,100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च किए गए. इवन अभी जो इन टर्म बजट लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स उसमें याद रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करने की बात की गई है. नेक्स्ट, नेम द स्कीम या प्रोग्राम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दैट हैज रिसेंटली रिन्यूड अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट और 5-year MOU विद लेडी अर्विन कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है फॉर रोशनी क्या है? सेंटर ऑफ वीमेन कलेक्टिव्स लेड सोशल एक्शन. यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ग्रो करने में हेल्प किया जाता है. ठीक है. तो किस स्कीम के अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये 5 साल का MOU किया गया? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर यहाँ पे ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया. एंड इस 5 साल के अंडर यहाँ पे हम देखेंगे जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्रो करने के साथ साथ स्किल्स के साथ साथ फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश में हम कम्युनिटीज को ग्रो करेंगे, उनको इसके बारे में एनहेंस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे. नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड आई सेलेक्ट गारंटेड फ्यूचर प्लस. तो ये आई सेलेक्ट गारंटेड फ्यूचर प्लस लॉन्च किया गया है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा. ये आपके 4 डिफरेंट प्लान्स ऑफर करता है. एंडोमेंट प्लान, रेगुलर इनकम ऑप्शन, अर्ली इनकम ऑप्शन एंड लॉन्ग टर्म इनकम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन. नेक्स्ट, द सिटी ऑफ लंडन कॉर्पोरेशन ऑनर्ड डैश जो कि एक इंडियन बॉर्न लॉयर हैं इन UK, उनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंडन अवार्ड से सम्मानित किया गया. ये अवार्ड का नाम याद रहेगा. ठीक है. और ये जो लॉयर है ना ये बोथ इंडियन लॉ
एंड यूके लॉ प्रैक्टिस करते हैं, करेक्ट। और इन्होंने इंडिया और लंदन के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको ग्रो किया, उसको और स्ट्रेंथन किया है। तो ये है अजीत मिश्रा। नेक्स्ट, इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने टेस्ट किया एक एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, जिसको ब्रह्मोस ईआर मतलब एक्सटेंडेड रेंज। तो ये जो ब्रह्मोस ईआर है ये एक एक्सटेंडेड एंड इंप्रूव्ड वर्जन है ऑफ द बेसिक ब्रह्मोस मिसाइल विद अ रेंज ऑफ अराउंड डैश किलोमीटर्स। अर्लियर इसकी जो रेंज एक्सपेक्टेड थी ना 290 से 350 किलोमीटर की रेंज होती थी ब्रह्मोस मिसाइल की, बट जो ये एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है इसकी 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज रहेगी। ब्रह्मोस को बारे में हम जानती हैं, इंडिया एंड रशिया का ये एक जॉइंट वेंचर था। फिर इंडिया ने, और या फिर हम बोलें कि वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने इंडिया से प्रोक्योर किया ब्रह्मोस मिसाइल को, वो है फिलीपींस। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द इंडियाज फर्स्ट एआई स्टार्टअप टू रीच यूनिकॉर्न स्टेटस। यूनिकॉर्न स्टेटस होता है जब एक कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर देती है। तो अभी रिसेंटली वो कौन सी कंपनी है? कृत्रिम। कृत्रिम याद रखेंगे ये एक एआई स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, जिसको लॉन्च किया गया बाय ओला के फाउंडर एंड चेयरमैन भावेश अग्रवाल के द्वारा, करेक्ट। इन्होंने भी $50 मिलियन रेज किए एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेटर हु हैज रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट टू स्कोर 300 रन्स इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट ड्यूरिंग द रणजी ट्रॉफी मैच। ये है तन्मय अग्रवाल। तन्मय भट्ट मत याद रखना, राइट। तन्मय अग्रवाल ये वो फास्टेस्ट स्कोरर बने टू स्कोर 300 रन्स, फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 300 रन्स इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट ड्यूरिंग द रणजी ट्रॉफी मैच, करेक्ट। हैदराबाद वर्सेस अरुणाचल प्रदेश था ये 26 जनवरी को। उस दिन 26 जनवरी की बात करें तो चीफ गेस्ट कौन आए थे रिपब्लिक डे परेड पर? वो थे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एक 7 साल का $100 मिलियन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन बॉन्ड? ये जो $100 मिलियन का बॉन्ड लॉन्च किया गया ना, ये बेसिकली आपके प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए। एंड हम जानते हैं प्लास्टिक से अगर वो ओशंस में चले जाते हैं इससे इकोसिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे ये $100 बिलियन का प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड को लॉन्च किया गया। 7 साल का ये बॉन्ड का टेन्योर रहेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली टाई अप किया एक एमओयू साइन किया NIIFL के साथ टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया? तो वो रहेगी REC, राइट। REC ने NIIFL के साथ टाई अप किया ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग फाइनेंसिंग की जा सके एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में भी हम बढ़ावा दें। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर डैश वन द ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 एंड सूर्या कुमार यादव हैज वन द ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 फॉर द डैश कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो विराट कोहली ने तो जीत लिया है ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए। सूर्या कुमार यादव ने जीत लिया है ICC मेंस T20 इंटरनेशनल फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। 2022 में भी इनको टाइटल से सम्मानित किया गया था यहाँ पे, और अब 2023 में भी। नेक्स्ट, शेरिंग टॉगबे इज सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। तो शेरिंग टॉबगे ये अभी सेकेंड टाइम के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे किस कंट्री के? भूटान के। फिर इसके बाद आ जाता है नीतीश कुमार, ये अभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे किस स्टेट के? बिहार के। एंड ये फॉर द 9th टाइम, 9वीं बार बिहार के ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे एंड ये JDU के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, अभी RBI ने अनाउंस किया दैट द बैंक्स कैन नॉट इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉट मेंटेनिंग द मिनिमम बैलेंस ऑन अकाउंट दैट आर इनऑपरेटिव एंड दोज दैट हैव नॉट रिकॉर्डेड एनी ट्रांजैक्शन फॉर ओवर 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इवन यहाँ पे बताया गया कि जो बच्चे लोन लेके अब या फिर हम अपना स्कॉलरशिप मनी रिसीव करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए अपना अकाउंट खुलवाते थे एंड वो इनऑपरेटिव हैं पिछले 2 साल पे, उन पे भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड ये रूल्स कब से इफेक्टिव में आ जाएंगे? फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। नेक्स्ट, टोयोटा मोटर हैज रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग ऑटोमोबाइल मेकर फॉर द डैश कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो ये है टोयोटा मोटर्स फॉर द 4th टाइम, राइट। 4th टाइम they have became the largest automobile sellers in the world for the 4th time.
Next, which of the following states have recently signed an MOU with Ministry of Jal Shakti for the implementation of the modified PKC ERCP link project? This is between Rajasthan and Madhya Pradesh. The basic aim of this project is basically कि इरिगेशन इंडस्ट्रियल के लिए एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. सो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 4. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तानसेक जनवरी 2024 में? तो ये सादा तानसेक एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. ये इनॉग्रल एडिशन था, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का. इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई. पूछा जा रहा है लोकेशन क्या रहेगी, तो राजस्थान में इसको कंडक्ट कराया गया है. एंड याद रखेंगे आर्मी की बीच में ये एक्सरसाइज है, ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है. नेक्स्ट, अजाली ओसमानी वॉज रिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ कोमोरोस फॉर द 4th 5-year टर्म. मतलब चौथा टर्म रहेगा इनका, और एक टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है. 1999 से यहाँ पे ये इन पोजीशन में है टू द प्रेसिडेंट, एंड ये अब 2029 तक यहाँ पर रहेंगे. करेक्ट. पहली बार 1999 में बने थे, एंड अब ये ही विल रिमेन इन दिस पोजीशन टिल 2029. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज साइमल्टेनियसली लॉन्च 3 सैटेलाइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग 2-stage लिक्विड फ्यूल सिमॉग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? ये सिमॉग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसकी है? ईरान की. 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे. एक है महदा, कीहान 2 एंड हातेफ 1. पूछा जा सकता है कि महदा, कीहान, हातेफ, इनमें से ये कोई भी एक सैटेलाइट का नाम दे देंगे. पूछेंगे किस कंट्री ने लॉन्च किए हैं, तो ईरान ने. नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप निरूपक वॉज डीकमीशन्ड आफ्टर 38 years ऑफ सर्विस टू द नेशन. ये INS निरूपक किस क्लास के शिप से बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू संध्या क्लास. GRSE के द्वारा इसको डेवलप किया गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में. एंड इसको कब डेवलप किया गया था, ये भी याद रखेंगे. कब डेवलप किया गया था इसको? 1981 में डेवलप किया गया था GRSE के द्वारा, एंड 38 years ऑफ सर्विस के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया. नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 26 जनवरी 2024 को हमने ऑब्जर्व किया पहला UN इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ फोर्ब्स, किन्होंने इलन मस्क को रिप्लेस कर दिया टू बिकम द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? वो है बर्नार्ड आर्नल्ड. ये लुई विटॉन ब्रांड के को फाउंडर एंड चेयरमैन है, राइट. और इन्होंने इलॉन मस्क को भी रिप्लेस कर दिया है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी. अभी किस कंपनी ने ह्यूमंस के ब्रेन में एक इम्प्लांट डाला है, ब्रेन इम्प्लांट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ह्यूमन पेशेंट, प्रॉमिसिंग इनिशियल रिजल्ट? तो ये रहेगा न्यूरोलिंक, राइट. न्यूरोलिंक क्लेम करता है यहाँ पे टेलीपैथी के माध्यम से जो भी डिसेबल्ड लोग होंगे वो अपने ब्रेन की मदद से जो सामने जो भी डिवाइस होगा उसको कंट्रोल कर पाएंगे फॉर देयर बेनिफिट, राइट. एंड ये न्यूरोलिंक किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की कंपनी है, ये भी याद रखेंगे. ठीक है, तो न्यूरोलिंक ने अभी ब्रेन में इम्प्लांट डाला और ये पहले ह्यूमन में इन्होंने इम्प्लांट डाला है. तो दोस्तों ये थे हमारे 4th वीक ऑफ जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. इससे जनवरी मंथ खत्म होता है. अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे. सबसे पहले तो यही चीज़ करो. अब आ जाते हैं इसके बाद कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. Which state government recently approved an electrification scheme to provide electricity facilities to unelectrified rural hamlets and households? तो किस स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी? झारखंड, राइट. झारखंड वो स्टेट बनी जहां पर हम इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम प्रोवाइड करा रहे हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके जहां पर उन घरों में इलेक्ट्रिसिटी की अभी तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है. ये एक स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अंडर, राइट. एंड 1485.39 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर अलोकेट किए गए फॉर दिस स्कीम. नेक्स्ट, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया अभी एक मेडन वॉयज ऑफ द वेसल कोस्टा सेरीन? ये जो कोस्टा सेरीन यहाँ पे लॉन्च किया गया ना, देखो आपको याद रखना है कोस्टा सेरीन क्या है. ये इंडियाज़ फर्स्ट क्रूज लाइनर, पहला क्रूज शिप रहेगा. और इसी से हमारे इंडिया में
जो क्रूज टूरिज्म है ना उसका शुरुआत हुई है। ये फ्लैग ऑफ कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में इसको फ्लैग ऑफ किया गया है, ठीक। और ये मेक इन इंडिया के अंडर देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक 5,336 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को प्रोक्योर करने की बात की गई, जिसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5,336 करोड़ रुपए का। किस कंपनी के साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, राइट। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखेंगे, ये जो मैन्युफैक्चर करेंगे इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को वो करेगी पुणे महाराष्ट्र में। एंड इसी के साथ साथ एक नागपुर में भी प्लांट सेटअप किया जा रहा है, वहाँ पे इन दोनों जगह पर ही आपके इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के 14th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो कौन बने अब 14th चीफ मिनिस्टर? वो है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा किन को रिप्लेस करेंगे? तो ये अशोक गहलोत को रिप्लेस करेंगे, जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के, ठीक है। तो 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू फंड $44.7 million to strengthen the food security and environmental protection in Uttarakhand under the India's Hunger Project। तो किस स्टेट ने या किस कंट्री ने यहाँ पे फंड किया 44.7 मिलियन डॉलर इंडिया के द हंगर प्रोजेक्ट के लिए? वो है नॉर्वे, राइट। और इनका एम रहेगा 2026 तक हम यहाँ पे फंड कर सकें 3 साल तक इस प्रोजेक्ट को, एंड यहाँ पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बेसिकली बात की गई। इन दिसंबर डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। तो CISF की अभी रिसेंटली कौन वो पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। वो है नीना सिंह, पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। फिर अनीश दयाल सिंह, याद रखेंगे अनीश दयाल सिंह, इनको यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट किया गया फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ राहुल रसगोत्रा, ये बनाए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, ठीक है, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, फिर रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस एंड USA की स्पेस एजेंसी है नासा। इन्होंने रिसेंटली एग्री किया टू एक्सटेंड देयर पार्टनरशिप फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय कंटिन्यूइंग क्रॉस फ्लाइट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंटिल 2025। पहले रशिया ने बोला था कि हम 2024 में एग्जिट कर देंगे इस कोलैबोरेशन को बिटवीन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज। तो यहाँ पे रशिया ने एग्जिट करने की बात की थी ISS से, लेकिन अब वापस से हम देख रहे हैं ये कोलैबोरेशन एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक। विच कंपनी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट टू सपोर्ट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? इट इज कलर्स, राइट। कलर्स आपके चैनल का नाम रहेगा, राइट। इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के साथ, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा सके, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच स्टेट और यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 250 मीटर लंबा नव दुर्गा पाथ एक स्काई वॉक एंड रीमॉडल द पार्वती भवन। तो किसके द्वारा ये किया गया, कौन सी स्टेट के द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर में ने यहाँ पर 250 मीटर लंबा नव दुर्गा पाथ स्काई वॉक को लॉन्च किया, राइट। ये जो स्काई वॉक है ये एक पेडिस्टेरियन फ्लाईओवर है जो कि बिल्ट एन एलिवेशन ऑफ 20 फीट अबव द ग्राउंड, और इसको बनाने में 15.69 करोड़ रुपीस की लागत लगी। एंड ये जो पार्वती भवन है इट इज़ लिंक टू स्काई वॉक टू एंश्योर दैट जो पिलग्रिम्स हैं वो आना जाना कर सकें विद देयर डिपॉजिटिंग देयर लगेज। एंड ये जो पिलग्रिम है और ये जो आपका स्काई वॉक है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली 10,000 से लेके 15,000 तक पिलग्रिम्स होते हैं वो डेली यहाँ पे विजिट करेंगे। किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनविसाइज एज वन नेशन वन पास सिस्टम? इससे जो इंडिया की एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक है इसकी, वो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है, करेक्ट। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड जैसे मैंने बताया इससे जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है जैसे टिम्बर का, बैम्बू का, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अक्रॉस इंडिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं DEA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। 8% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, ये 8.2% कर दिया गया है फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ 2024 फिस्कल ईयर 2024। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेगा।
नेक्स्ट है आरबीआई, इन्होंने रिवाइज किया पीआईडीएफ स्कीम को, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को। इसके अंडर आपने देखा होगा हर दुकान पे आपके बारकोड के साथ साथ एक साउंड बॉक्स लगा होता है, राइट। वो साउंड बॉक्स क्या काम का होता है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो जो आपका ऑनर है उनको पता लग जाए कि आपने पेमेंट कर दिया एंड वो वॉइस करता है। तो ऐसे साउंड बॉक्स को लगाने के लिए ना सरकार इंसेंटिव्स देती है, सरकार ही यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो ये है आपकी पीआईडीएफ स्कीम, करेक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। सरकार के द्वारा ये कुछ यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने रिवाइज की पीआईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को, राइट, एंड एक्सटेंडेड द डेडलाइन अंटिल डैश। तो डेडलाइन कब तक एक्सटेंड कर दिया है? तो 31 दिसंबर 2025 तक इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इन्होंने अनवेल किया क्रेस्ट ऑफ द इंडियन नेवल शिप डैश, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ऑफ प्रोजेक्ट 15B। तो ये रहेगा आईएनएस सूरत, राइट। क्या है? आईएनएस सूरत, राइट। ये अभी आईएनएस सूरत है जो कि भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के द्वारा अनवेल किया गया, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B। नेक्स्ट, किस स्टेट ने या यूटी ने किस स्टेट की या यूटी की पुलिस ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया जीपीएस बेस्ड ट्रैकल एंकलेट्स टू मॉनिटर द टेरर अक्यूज्ड पीपल आउट ऑन बेल। जो आपके लोग बेल पर हैं बाहर, उन पे एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया उनके एंकलेट पे, मतलब पैर पर। किस स्टेट के द्वारा या यूटी के द्वारा? तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और याद रखेंगे ऐसा सिस्टम आपका हमें यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, इनमें न्यूजीलैंड में ऑलरेडी देखने को मिलता है। नेम द मिनिस्टर दैट रिसेंटली लॉन्च जल दिवाली वाटर फॉर वीमेन फॉर वाटर अवेयरनेस कैंपेन अंडर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अमृत है, इन पार्टनरशिप विद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो याद रखेंगे किस नेम द मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया ये जल दिवाली वाटर फॉर वीमेन फॉर वाटर कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा पूछा गया है? नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली लॉन्च दिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और यहीं पे इस जल दिवाली वाटर फॉर वीमेन फॉर वाटर कैंपेन का जो नॉलेज पार्टनर रहेगा वो कौन रहेगा? ओडिशा अर्बन अकेडमी। ओडिशा अर्बन अकेडमी नॉलेज पार्टनर रहेगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, करेक्ट। ये किनको रिप्लेस करेंगे? इन्होंने किनको रिप्लेस किया टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? वो है के चंद्रशेखर राव, राइट। फिर इसी के साथ साथ एक जो चीज़ और याद रखेंगे, अगर पूछा जाए यहीं पर कि डेप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सॉरी सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वो है अनुमुला रेवंत रेड्डी। फर्स्ट कौन थे? के चंद्रशेखर, राइट। चलिए फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2023। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ठीक रहेगा। ए ऑप्शन गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे टॉप नहीं किया मेडल टैली में, बल्कि हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली विद 105 मेडल्स, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ये इनॉग्रल एडिशन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, न्यू दिल्ली में हुआ था और हरियाणा ने टॉप कर लिया। शीतल देवी जो जम्मू कश्मीर की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द ओपन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आर्चरी इवेंट। फिर भाविना पटेल गुजरात की हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेन सिंगल कैटेगरी ऑफ द क्लास 4 टेबल टेनिस इवेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया have recently won the FIH का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एंड FIH का वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल। तो अगर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल की मैं बात करूं वो रहेंगे हार्दिक सिंह, वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर की मैं बात करूंगा तो वो रहेंगी सविता पूनिया। तो ऑप्शन 2 यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कितने अमाउंट का? विद मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी। ये 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मडगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कितने अमाउंट का ये टाई अप साइन किया, कितने अमाउंट का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? तो याद रखेंगे अमाउंट रहेगी 1614.89 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं इसरो ने अभी 9th एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया फॉर इट्स डैश मिशन। सो चंद्रयान 3 मिशन के लिए अभी इसरो ने यहाँ पर 9वां एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया है। राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 17वें एमिर कौन अपॉइंट किए गए हैं? कुवैत के। हु हैज बीन स्worn इन एज द 17th एमिर ऑफ कुवैत। तो वो रहेंगे शेख मशल अल अहमद अल ज़ुबैर अल सबा। ये 17वें एमिर किंग अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के। इन नवंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन इन्होंने लॉन्च किया फेज 4 ऑफ ऑपरेशन डैश, जो कि बेसिकली इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर एंड रेड सेंडर्स को, यहाँ पे जो इलीगल ट्रेड होता है इसको रोकने के लिए इन मिडल ईस्ट ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन इनिशियली 2015 में लॉन्च किया गया था, इसीलिए हम देख रहे हैं इसका भी फेज 4 यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन का नाम क्या रहेगा? ऑपरेशन शीशा। राइट, टिम्बर एंड इंक्लूडिंग रेड सेंडर्स, इसके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शीशा लॉन्च किया गया था। राइट, और इसका फेज 4 अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया कौन सा फाउंडेशन डे? तो इन्होंने इनॉग्रेट किया 71st फाउंडेशन डे ऑफ द EPFO ऑन 1st of November 2023। राइट, और यहीं पर भविष्य निधि अवार्ड से भी प्रेजेंट किया गया 2023 के ड्यूरिंग द 71st एडिशन ऑफ EPFO फाउंडेशन डे। किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया एक MOU दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ टू प्रमोट वीमेन लेड एंटरप्राइजेस इन इंडिया? तो कौन सी है वो रेगुलेटरी बॉडी? वो है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने रिसेंटली टाई अप किया डे NRLM के साथ, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एक MOU साइन किया ताकि वीमेन लेड एंटरप्राइजेस को, वीमेन लेड स्टार्टअप्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके इंडिया में। एंड ये जो MOU है 2 साल के लिए यहाँ पे ये साइन किया गया है। Name the personality who has recently been appointed as the first ever global brand ambassador of Bisleri International Private Limited। तो Bisleri क्या है हम जानते हैं, ये एक वाटर बॉटल ब्रांड है, पानी मिलता है, करेक्ट। तो Bisleri ब्रांड की अभी रिसेंटली कौन बनी है नई ब्रांड एम्बेसडर? वो है दीपिका पादुकोण। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लोन अप्रूव किया $300 मिलियन का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फॉर द प्रोजेक्ट तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए? तो तमिलनाडु के क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अभी 300 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया गया है। किस बैंक के द्वारा? तो ये लोन मिलेगा इंडिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखो, हमेशा याद रखना, अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक देगा। IMF पैसा देगा जब आपको कहीं से लोन चुकाना है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने अनवेल किया लोगो, जर्सी, थीम सॉन्ग ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होंगे। तो ये 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट रहेगा उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, क्या रहेगा? वो है वीरा मंगाई। राइट, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया 6ठा एडिशन रहेगा ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और कहाँ पर होंगे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स? चेन्नई तमिलनाडु में। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वाटर स्मार्ट किड कैंपेन, एक इनिशिएटिव अंडर द जल जीवन मिशन? तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? मेघालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है वाटर स्मार्ट किड कैंपेन अंडर जल जीवन मिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल अमेंडेड शक्ति पॉलिसी टू ग्रांट कोल लिंकेज फॉर अ मिनिमम ऑफ डैश मंथ्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये शक्ति पॉलिसी लॉन्च की गई है। शक्ति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। शक्ति है क्या? शक्ति है आपका स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। आई रिपीट, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। ये पॉलिसी है जो अलाउ करेगी प्राइवेट जनरेटर्स को विदाउट पावर परचेज एग्रीमेंट, ताकि कोल इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, ये कोल की माइनिंग कर सकें फॉर मिनिमम ऑफ 3 महीने से लेके 1 साल तक। राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की गई इनको 3 महीने से लेके 1 साल तक, ताकि जो माइनिंग की जा सके ऑफ कोल्स, राइट, इन माइंस की। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पूछा गया कौन सी है? ये अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस 2023 S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा ये रिलीज किया गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिया का LIC हैज बीन नेम्ड एज द डैश लार्जेस्ट इंश्योरेंस, कौन सी पोजीशन पे रहेगा? और
एससी ये जर्मनी का है, ये कौन सी पोजीशन पे रहेगा? तो याद रखेंगे एलआईसी ये फोर्थ लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है इन द वर्ल्ड, करेक्ट, चौथा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं अलायंस एससी ये जर्मनी का है, इन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट, करेक्ट, ये लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इन द वर्ल्ड, वेयर एज एलआईसी की बात करें फोर्थ नंबर पे आता है। एलआईसी की वैल्यूएशन देखें तो 503.7 बिलियन डॉलर की रहेगी, वहीं पे अलायंस एससी की अगर वैल्यूएशन देखें तो 750.2 बिलियन डॉलर की रहेगी। तो राइट ऑप्शन यहां पे बन जाता है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया एंड वो पहली वीमेन बनी टू अपीयर ट्वाइस ऑन द पर्सन ऑफ द ईयर कवर। कौन रहेंगी? वो है टेलर स्विफ्ट, काफी फेमस सिंगर हैं टेलर एलिसन स्विफ्ट। ये इनको भी टाइम मैगजीन 2023 की पर्सन ऑफ द ईयर रही है, एज वेल एज ये वो पहली वीमेन बन गई हैं जो 2 बार ट्वाइस पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पे आई हैं, टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द मिनिस्ट्री जिन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को टू एनेबल एंड एम्पावर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। तो किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अभी रिसेंटली एक अप्रूव किया डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को जो एनेबल करेगी एंड एम्पावर करेगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट, विच कंट्रीज नेवी अलॉन्ग विद इंडियन नेवी इन्होंने कंडक्ट कराया 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर। बोंगो सागर ये 4th एडिशन था, इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी बोंगो सागर, राइट। और इसी को हम याद रखेंगे, ये 5th इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी की कॉर्पेट एक्सरसाइज है। कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। यहाँ पे इंडिया की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो आईएनएस कूथर एंड आईएनएस किल्तन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है डीपीआईआईटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इंप्रूव द इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए अभी डीपीआईआईटी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो वो है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया ताकि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्ट है बिटवीन 2 लोकेशंस किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके एंड जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा ना बढ़े एंड ये ईजी हो सके बिजनेसमैन्स को, ताकि वो अपना बिजनेस कैरी आउट कर सके। नेक्स्ट है आरईसी लिमिटेड, इन्होंने साइन किया अ डैश लोन अग्रीमेंट विद केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि जर्मनी का है, टू रिफॉर्म द डिस्कॉम इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिफॉर्म लाने के लिए यहाँ पर किस आरईसी ने किसके साथ अभी कितने अमाउंट का लोन अग्रीमेंट साइन किया? तो आरईसी ने किसके साथ किया? वो है केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि कहाँ का है? जर्मनी का है। कितने अमाउंट का ये अग्रीमेंट साइन किया गया? तो 200 मिलियन यूरो का ये अग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया। राइट ऑप्शन ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन स्worn इन एज द 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के 6ठे चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है लाल दुहोमा, करेक्ट। 74 हैं ये लाल दुहोमा, और ये नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, छठे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कहां के? मिजोरम के। आईडेक्स इंडिया की तरफ से एंड यूएस की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। और एमओयू नहीं बोलेंगे तो इन दोनों के द्वारा अभी फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडस एक्स ये ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडस एक्स क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, राइट। डिफेंस में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया, करेक्ट। और ये फर्स्ट एडिशन था इंडस एक्स का, इंडिया और यूएस के बीच में। CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अप्रूव्ड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड फॉर इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड अतुनिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन विच स्टेट। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर बात करूं इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, तो इसके लिए जो खर्चा आएगा वो है आपका 32,813 करोड़ रुपीस, वेयर एज अतुनिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो 6,866 करोड़ रुपीस यहाँ पे लागत आएगी। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर बाय 2030। तो ये फूड सिक्योरिटी कैंपेन, राइट, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूपी के फूड सिक्योरिटी कैंपेन ये लॉन्च किया गया था आपका मेघालय के द्वारा,
राइट, एंड जीरो हंगर अचीव करने की बात की गई बाय 2030। ठीक, मार्क करेंगे। फिर किस स्टेट ने अभी रिसेंटली CSIR एंड DRDO के साथ टाई अप करा ताकि मेडिकल सेक्टर में डेवलपमेंट लाने के लिए? तो वो रहेगी यूपी, मार्क करेंगे ये भी। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ऑफ केरला, ये भी हमने देखा था, इनको लिस्ट किया गया इन द लिस्ट ऑफ केस स्टडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो केरला की ये आपका रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म रहेगा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली फॉर्म किया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सर्वे ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये जेनेसिस इंटरनेशनल रहेगी। इन्होंने रिसेंटली अभी फॉर्म किया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सर्वे ऑफ इंडिया ताकि 3D मैपिंग कर सके ऑफ सिटीज, करेक्ट, एंड इसीलिए ये जेनेसिस इंटरनेशनल ने यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा। एंड US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने जॉइंटली रिलीज की प्रोग्रेस टुवर्ड मीजल्स एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2000 से लेकर 2022 की रिपोर्ट रहेगी। पूछा जा रहा है इन 2022 अराउंड डैश लाख चिल्ड्रन इन इंडिया मिस्ड देयर मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन्स फर्स्ट डोज। तो अराउंड 11 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया इन्होंने मिस कर दी मीजल कंटेनिंग वैक्सीन फर्स्ट डोज को। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी सी बकथ्रोन हैज रिसेंटली गॉट द GI टैग। तो अभी हमने देखा था सी बकथ्रोन कहाँ का प्रोडक्ट है, लद्दाख का है, जिसको भी GI टैग मिला। नेक्स्ट, नेम द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द बिल रेजिंग कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू 65% फ्रॉम 50%। तो ये थे गवर्नर ऑफ बिहार, कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, राइट। इनके द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया है बिल रेजिंग द कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू 65% फ्रॉम 50%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक लोन अग्रीमेंट साइन किया गया, कितनी जैपनीज येन का, टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को यहाँ पे डेवलप करने के लिए। अभी कितना अमाउंट यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो अमाउंट रहेगा ये आपका 37 बिलियन जैपनीज येन। इसको कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट आ जाता है $250 मिलियन। ठीक है, 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अब्देल फतेह LCC, इनको रिलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द 3rd टर्म, तीसरी टर्म के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इन्वेस्टमेंट वर्थ $360 मिलियन इन द IT हार्डवेयर सेक्टर, करेक्ट, ताकि यहाँ पे IT हार्डवेयर सेक्टर को डेवलप किया जा सके बाय 2026 और इंडिया को एक IT हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने अनाउंस किया 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, राइट। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तो जो भी वो लोन लेंगे उनको 1% का यहाँ पर हेल्प मिलेगा जब वो नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लोन लेंगे, राइट। फाइनेंशियल हेल्प में 1% की रिबेट मिलेगी। Next, according to Migration and Development Brief 39, leveraging diaspora finances for private capital mobilization released by World Bank in December, Dash country has topped the remittance chart with an estimated inward remittance flow of $125 billion. तो देखो, inward remittance होता है एक होता है outward remittance। inward remittance होता है जब पैसा दुनिया से हमारे इंडिया में आ रहा हो, तो ये हो जाता है इनवर्ड रेमिटेंस। आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया का पैसा दूसरी कंट्रीज में बाहर जा रहा हो। तो अभी इंडिया ने टॉप किया है इनवर्ड रेमिटेंस में, $125 बिलियन का यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस हमें देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब कब? तो पहली बार वर्ल्ड में 2023 में ये UN वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया गया। और कब ऑब्जर्व किया गया? 31 दिसंबर 2023 को पहली बार इसको ऑब्जर्व। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.